लाइव हो गया? क्यों नहीं रहा यार? Hello to everyone. कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Everyone please confirm, am I audible and visible clearly to all of you? Good morning Mohit, good morning Sasank, good morning to all of you. Civil Engineers Hub, ये कैसा नाम है भाई? I am good Sasank, I am good. बेटा कंफर्म करो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ऑडियो वीडियो इज क्लियर. I am good, I am absolutely fine. How are you all? आप लोग कैसे हो? सुरेश गुड इवनिंग हो रहा है, गुड मॉर्निंग हो रहा है? सुरेश का अलग ट्रैक चल रहा जीवन में, मॉर्निंग में इवनिंग हो रहा है. चलो once again good morning to all of you. So do like and share the sessions so that others can also join. लाइक और शेयर करते रहो. अच्छा सर्वेइंग चल रहा है अभी. सर्वेइंग मिलेंगे, शाम को मिलेंगे. सर्वेइंग की क्लास होगी 8:30. चलो तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक. और डिजाइन ट्रैफिक का कैलकुलेशन क्यों रिक्वायर्ड था? बिकॉज मैं डिजाइन करना चाह रहा था पेमेंट को. आई वांट टू डिजाइन द थिकनेस ऑफ द पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को निकालने के लिए दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है. एक तो डिजाइन ट्रैफिक कितना आने वाला है और दूसरा सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल का सीबीआर क्या है. इन दो चीजों के बेसिस पे आई विल कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट. इतना बेसिक मुझे पता है.
तो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिजाइन ट्रैफिक निकालने के लिए IRC 37 में गाइडलाइन थी. विद द हेल्प ऑफ दैट गाइडलाइन वी कैन कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक. और अभी हम लोग CBR ऑफ सॉइल भी निकाल लेंगे, उसके बेसिस पे पेमेंट डिजाइन कर देंगे. तो वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑल्सो, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे उस चीज पे. तो before starting the class, let me introduce myself for those who are new to this channel. So I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, as you can see. I have qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of different states. My teaching experience in the field of GATE and ESE is more than 5 years, and I have 3 years research experience too. Subject जो मैं आपको complete कराने वाला हूँ, I will deal with the transportation engineering, surveying and RCC. These are my subjects that I am going to cover for the exam GATE and ESE. GATE और ESE एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ. दिस इज माय रेफरल कोड, दैट इज KKS10. क्या है यूज इस कोड का, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस कोड? तो दिस इज माय रेफरल कोड. इफ यू आर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू आर पुटिंग दिस कोड, that is KKS10, you will get 10% off on your subscription cost just by applying this code. कैसे करना है, क्या करना है, let's discuss. So 2 types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In Plus what you will get, live classes will be there. Live classes आपको attend करनी होंगी. Crash courses will be there. Rank improvement batches will be there. तो different types of batches will be there. तो regular batch भी available होंगे for GATE and ESE. So yes, regular batches are also running. In additional to regular batches, you will find crash course, rank improvement batches will be available. Weekly test will be there. Doubt solving sessions will be there. And yes, language की problem नहीं रहने वाली. The subjects will be covered in both language, English and Hindi. तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. These are the features of the Plus that you are going to get. And yes, these features are going to be helpful for your preparation for your better results. One more option is available, that is Iconic. In Iconic what you will get, all the features of the Plus जो मैंने भी आपको बताया, these features are already covered. These features are already covered in the Iconic, but in additional to these features, you will get study planner will be there for you in the case of Iconic. Personal coach, personal mentor will be also provided to you for one-on-one guidance on the preparation strategy. Preparation study material will also provided to you. Study booster sessions will be there, and personalized test analysis will be there. So these are the features of the Iconic subscription. तो किसी भी एक को आप ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है as per your need. This is your channel, that is Unacademy GATE CE. तो इस चैनल पे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए, as you can see. Fluid mechanics, strength of material, design of steel structure, geotechnical, RCC, open channel irrigation, structure, surveying, geotechnical, again environmental, hydrology, highway engineering. तो all the major subjects we can say, काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं. बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही है. तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, जस्ट विजिट द प्लेलिस्ट. चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अवेलेबल है. आप किसी भी प्लेलिस्ट से अपने सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं. तो दिस इज ऑन यूट्यूब चैनल, दैट इज Unacademy GATE CE. फॉर सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट विजिट द Unacademy ऐप और वेबसाइट. सेलेक्ट योर गोल, तो आपको वहां पर गोल सेलेक्ट करना होगा GATE एंड ESE का. मींस इन वन सब्सक्रिप्शन यू कैन कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ GATE एज वेल एज ESE. तो GATE और ESE के लिए भी ओनली वन सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. Unacademy इज वर्किंग ऑन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी. तो सारे फीचर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे जस्ट बाय वन सब्सक्रिप्शन, एंड की टू अनलॉक दैट फीचर्स इज KKS10. दिस इज माय रेफरल कोड. Then you will select the type of subscription you want to take. The here I have demonstrated for Plus. Then you will select the duration of the subscription. So you can go for 12 months, you can go for 18 months, you can go for the 24-month subscription. Long-term subscription is going to be economical for you. EMI option is also available. So no cost EMI option is also available. Here you will apply my referral code, that is KKS10, and yes, जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे, you will get 10% off on your subscription cost.
Same process you can follow for the iconic. Same process you can follow for the iconic. Iconic is that you can go for the 12 month. You can go for the 24 month. Again, long-term subscription will be economical for you. Make sure whenever you are going to complete your registration process with Unacademy, you are using this code, that is KKS10. In this way, you can complete your registration process with Unacademy and start your preparation. This is my Unacademy profile link. ये मेरी Unacademy प्रोफाइल लिंक है. यू कैन ऑल्सो सर्च दिस नेम. यहां पर इस लिंक को फॉलो करके आप जितनी भी मैंने फ्री स्पेशल क्लासेस लिए उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. ऑल दोस लेक्चर्स विल बी एक्सेसिबल टू यू जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक. ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड किया गया है. जैसा बहुत सारे लोग को पता है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं स्पेशल क्लासेस में रेलवे इंजीनियरिंग फ्रॉम गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू. गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारा वहां पर रेलवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन चल रहा था. दोज हु वांट टू कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, दे कैन विजिट दिस लिंक and yes, you will able to access all the free classes, all the special classes that were taken by me. ठीक है, तो इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं आप. दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप. So we have created a telegram group for all of you for the effective communication. So in this group, just by visiting this link, you will able to join that group, that is Unacademy GATE and DSE CE. इस ग्रुप में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट द स्पेशल क्लासेस. तो जो भी स्पेशल क्लासेस हैं उनके रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे. यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो यस, एनी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. क्लियर? these are our Facebook pages. आप सभी इन पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं to get connected with us. And yes, these are the channels from where you can start your learning. So for different branch, different exams, we have separate channel. So this channel is for GATE and ESE electrical and electronics student. This is for mechanical engineering student. This channel is for civil engineering student. In this channel, we are going to cover the content in Telugu language. This channel is for SSC JEE exam. और जो भी आपके स्टेट्स के जेई एग्जाम है, फॉर दैट वी हैव सेपरेट चैनल, दैट इज अनअकैडमी एसएससी जेई. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए चैनल है अपना. इन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन. तो डिटेल्ड सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम द गेट एग्जाम. यस, दैट इज अनअकैडमी गेट क्वेश्चंस चैनल, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, इंजीनियरिंग पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल. दीज आर द चैनल्स from where you can start your learning. You can also recommend these channels to your other branch friends so that they can also start their preparation. तो I hope I am clear with all these points. यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर, एक बार कंफर्म कर दो. फिर मैं तुम्हारे जनरल डाउट्स एंड क्वेरी देख लेता हूं. गुड मॉर्निंग. मेरी जनरल क्वेरी कीजिएगा. क्या है जनरल क्वेरी भाई? हाईवे क्रैश कोर्स के बाद आप आरसीसी क्रैश कोर्स गेट ओरिएंटेड लाइन सिंस आई एम मिस्ड प्रीवियस आरसीसी क्लासेस. बेटा देखो, शेड्यूलिंग विल डिपेंड. शेड्यूलिंग लगातार आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड है. तो आई कैन नॉट कमिट कि मैं एग्जैक्टली यही सब्जेक्ट लाने वाला हूं, बिकॉज प्रायर शेड्यूलिंग होता है सब्जेक्ट्स का. तो अचानक से कोई सब्जेक्ट प्लान नहीं कर सकते. यस, तो एज ऑल ऑफ यू नो, वी आर टेकिंग द क्लासेस ऑन द 3 प्लेटफॉर्म. एक तो आपके लिए फ्री इनिशिएटिव है अनअकैडमी की तरफ से, जो आप यूट्यूब में अटेंड कर रहे हैं. इसके अलावा वी हैव क्लासेस ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म ऑल्सो. वी हैव क्लासेस ऑन द स्पेशल क्लासेस ऑल्सो. तो इट विल डिपेंड कि क्या शेड्यूल है, क्या फाइनल होता है, उसके बेसिस पे कोर्स आएगा. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्वे देयर विल बी रेलवे एंड एयरपोर्ट कोर्स. तो अभी जहां तक मुझे पता है रेलवे एंड एयरपोर्ट का कोर्स पहले आएगा, देन वी विल प्लान द आरसीसी कोर्स. तब तक अगर आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर आरसीसी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. सारे लेक्चर्स अवेलेबल है. आप उन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं डिटेल में. ठीक है सुरेश? वी विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट, डोंट वरी फॉर दैट. और कोई डाउट, और कोई क्वेरी?
क्लियर है अभी सब कुछ? चलो, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो अभी मैंने फिर से बताया, रिपीट किया कि थिकनेस निकालना मेन ऑब्जेक्टिव है। थिकनेस निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा डिजाइन ट्रैफिक, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल एन से, और मुझे निकालना पड़ेगा सीबीआर ऑफ सॉइल। सीबीआर ऑफ सॉइल, तो डिजाइन ट्रैफिक का फॉर्मूला बताया मैंने, 365 इंटू ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई r बाई 100। इस फॉर्मूले से आप डिजाइन ट्रैफिक निकाल सकते हैं। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिपीटिशन, और उसके बेसिस पे इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एमएसए में। बेस्ड ऑन द डिजाइन ट्रैफिक ऑन एमएसए एंड द सीबीआर ऑफ सॉइल वी विल एबल टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट, और यही अपना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है सर। तो कल मैं आपसे इसमें बेसिक टर्म्स की बात कर रहा था, क्या टर्मिनोलॉजी है। तो आई होप नाउ एंड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने अप्लाई करा होगा। 365 इज क्लियर टू मी, ए इज क्लियर टू मी। ए था जब रोड कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड, उस समय रोड पे इनिशियल कितने कॉमर्शियल व्हीकल पर डे हैं, उसको मैंने डिफाइन किया था ए से। आर इज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, एन इज द डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन ईयर, एन इज द डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन अ ईयर, VDF is the vehicle damage factor, D is the lane distribution factor, FOS is the factor of safety. Again, R is the annual rate of growth of traffic. I hope all these points are clear to all of you. ये फॉर्मूला अप्लाई करना सभी को आ गया, यस और नो? इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क योर डाउट। दिस फॉर्मूला इज सजेस्टेड बाय द IRC। IRC 37 कल क्लास में डिस्कस किया है। IRC 37 ने बताया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। कल दिखाया था ना, लो देखो। तो दिस इज योर IRC 37 2012 एज पर क्लॉज नंबर 4.6। As per clause number 4.6, the design traffic in the terms of cumulative number of standard axles to be carried during the design life of the road should be computed using the following equation. So this equation was provided to me by IRC 37 2012. तो IRC 37 के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे वी आर कैलकुलेटिंग द डिजाइन ट्रैफिक। ठीक है अंकित? जूम कर दें? जूम करने पे फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, विजिबल नहीं है। ठीक है, चलो। तो एक टर्म मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया अभी, एक टर्म आपको प्रॉब्लम कर सकता है, दैट इज व्हीकल डैमेज फैक्टर। दैट इज व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो अब देखते हैं VDF कैसे निकलेगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VDF। व्हीकल डैमेज फैक्टर निकालने का तरीका भी आपको IRC 37 ने बता दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। विद द हेल्प ऑफ VDF की हेल्प से मुझे क्या करना है, मुझे सारे व्हीकल्स को कन्वर्ट कर लेना है। मुझे चाहिए कि रोड पे जितना भी डैमेज कॉस्ट होगा, रोड पे जितना भी डैमेज कॉस्ट होगा ड्यू टू अदर क्लास ऑफ व्हीकल या अदर क्लास ऑफ एक्सल, उतना ही सेम डैमेज कॉस्ट होगा कब,
स्टैंडर्ड एक्सेल के कितने रिपीटिशंस हो गए उसके टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज वीडीएफ। वीडीएफ की कहानी समझने के पहले कुछ और बातें समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोड को मैं किसके लिए डिजाइन करने वाला हूं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो थिकनेस की डिजाइनिंग होगी वो हर तरीके के व्हीकल के लिए नहीं होने वाली। फॉर दैट वी विल कंसीडर द कॉमर्शियल व्हीकल। हम लोग डिजाइनिंग के लिए केवल कॉमर्शियल व्हीकल को कंसीडर करने वाले। कॉमर्शियल व्हीकल क्या, जिनका वेट जो होगा वो 3 टन से क्या होना चाहिए, 3 टन से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे व्हीकल जिनका वेट 3 टन से ज्यादा होगा उन व्हीकल को आप कंसीडर करेंगे फॉर डिजाइनिंग। मतलब द व्हीकल हैविंग द वेट लेस देन 3 टन वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट व्हीकल फॉर द डिजाइनिंग। ये बात तो क्लियर है। अब कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, फील्ड में कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उस डेटा के बेसिस पे फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीडीएफ। हम वीडीएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और एक बार जब मैं वीडीएफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पता होगा, मतलब ऑल दीज टर्म्स आर नोन टू मी, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक। यस और नो। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने बोला मुझे रोड पे ऐसे व्हीकल चाहिए जिनका वेट जो है वो 3 टन से ज्यादा है, जिनका वेट 3 टन से ज्यादा है, ऐसे व्हीकल के लिए डिजाइन करूंगा। तो उन व्हीकल को आपने आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए यू हैव परफॉर्म द सर्वे करा। तो सर्वे के लिए भी गाइडलाइन है, सर्वे के लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइडेड है कि अगर नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे कितने हैं उसके बेसिस पे आपके साइज ऑफ सैंपल कितना होना चाहिए। तो मिनिमम साइज ऑफ सैंपल, कितने व्हीकल का आपको एक्सेल सर्वे करना है, कितने व्हीकल का आपको एक्सेल सर्वे करना है। फॉर दैट IRC 37 हैज प्रोवाइडेड द गाइडलाइन। IRC 37 ने इसके लिए आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की। अगर आपके व्हीकल लेस देन 3000 है नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, तो मिनिमम आपको 20% व्हीकल का सैंपल का एक्सेल सर्वे परफॉर्म करना है। ये गाइडलाइन बताई गई। सिमिलरली अगर आपके व्हीकल 3000 से 5000 के बीच में, तो कल हम लोगों ने एक बार रिफर भी किया था, एक बार कोर्ट में भी देख लेते हैं। तो कल मैं कोर्ट जब आपको डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला था इस टेबल को वी आर गोइंग टू यूज, उसी टेबल की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सेल लोड सर्वे कितने व्हीकल का करना है, फॉर दैट वी आर हैविंग द गाइडलाइन। तो मैं डायरेक्टली आपको गाइडलाइन ही दिखाता हूं। यस, 3000 से 6000 ये है। अगेन इट कैन नॉट बी जूम। देखो, तो सैंपल साइज फॉर एक्सेल लोड सर्वे, वीडीएफ क्योंकि मुझे निकालना, लिखा हुआ लैंग्वेज पढ़िए। वीडीएफ शुड बी अराइव्ड, दिस इज द कोडल गाइडलाइंस। वीडीएफ शुड बी अराइव्ड एट केयरफुली by carrying out specific Excel load survey on the existing road. Minimum sample size for survey is given in table number 4.1. Excel load survey should be carried out without any bias. Proper data collect करना, कोई बदतमीजी नहीं करना है। लोडेड व्हीकल है, अनलोडेड व्हीकल है, इसमें कोई ध्यान नहीं देना है, केवल 3 टन के क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। On some section there may be a significant difference in the Excel loading in 2 direction. अब अगर आपका ट्रैफिक कंडीशंस का है तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपके इन दोनों ट्रैफिक में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंट हो सकता है। इन सच सिचुएशन द वीडीएफ शुड बी इवेल्युएटेड डायरेक्शन वाइज। आपको इधर के लिए VDF 1 और VDF 2 अलग अलग VDF कैलकुलेट करने। ईच डायरेक्शन कैन हैव डिफरेंट पेमेंट थिकनेस फॉर द डिवाइडेड हाईवे। अगर डिवाइडेड हाईवे है, दिस इज डिवाइडेड हाईवे, इन दिस केस आप दोनों कैरिज वे के लिए अलग अलग थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन प्रोवाइड द डिफरेंट थिकनेस फॉर द डिफरेंट कैरिज वे इफ आवर रोड इज डिवाइडेड। ये गाइडलाइंस बताएगी मुझे IRC 37 की तरफ से। कंफर्म करो बेटा, ये गाइडलाइन क्लियर है। तो VDF कैलकुलेट करने के लिए सम डेटा इज रिक्वायर्ड, और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू परफॉर्म सर्वे। कौन सा सर्वे करेंगे? वी विल परफॉर्म द एक्सेल लोड सर्वे।
अब एक्सल लोड सर्वे में सैंपल साइज कितना रखना है, व्हाट शुड बी द सैंपल साइज, फॉर दैट आईआरसी हैज आल्सो प्रोवाइडेड द स्पेसिफिकेशन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे 3000 से कम है तो वी विल minimum we will sample size should be 20%. If the range of the commercial vehicle on any existing road is 3000 to 6000 commercial vehicle per day, उस केस में मिनिमम सैंपल साइज जो होगा वो 15% का होगा। if the number of commercial vehicles are greater than 6000, the minimum percentage are going to be 10% as per the IRC 37/2012। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में से। इन प्रीवियस ईयर गेट दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टेबल। इस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। सीएसए और एमएसए का रिलेशन बता दीजिए। अच्छा, सीएसए डिवाइड बाई 10⁶ विल बी इक्वल टू एमएसए। सीएसए डिवाइड बाई 10⁶ विल बी इक्वल टू एमएसए। ये लो रिलेशन, याद कर लो। सही है कि गलत है? अरे यार, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स हैं, वो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल हैं, जो भी आएंगे उनको आप डिवाइड बाई 6 कर दोगे, जो भी आएंगे यू विल गेट द वैल्यू इन एमएसए। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स। चले आगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए भाई। दिस डिस्कशन वाज इंपॉर्टेंट। चलो सी द नेक्स्ट डिस्कशन। तो 3000 से कम था तो 20% सैंपल साइज होना चाहिए। 3000 से 6000 अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो इट शुड बी 15%, और अगर ग्रेटर देन 6000 है तो मिनिमम 10% शुड बी द सैंपल साइज एज पर द IRC 37/2012। मुद्दा यह है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्यों एक्सेल सर्वे कर रहे हैं, क्यों व्हीकल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। हाँ, CSA into 10⁶ will be equal to MSA। yes, करेक्ट। वो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डिवाइड करके MSA में लिख दिया था। CSA into 10⁶ will be equal to MSA। yes, तो इसके लिए हम लोगों ने we have performed some questions also। तो ऐसा कोई याद नहीं रखना है कि रिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। देखो, तो आपने बोला कि सबसे पहले मुझे 3 टन से ज्यादा के वेट के व्हीकल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपको एक मिला बस, वी हैव 1 ट्रक, ये सारे आपके कॉमर्शियल व्हीकल हैं, बट इन सभी में एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यू मे फाइंड वन व्हीकल समथिंग लाइक दिस। आपको एक व्हीकल कुछ इस तरीके का मिल सकता है विच आर हैविंग दिस एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन ऑल्सो फाइंड अ व्हीकल समथिंग लाइक दिस। तो आप सभी ने रोड पे देखा भी होगा, कुछ अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के व्हीकल आपको मिल जाएंगे। अरे हाँ या ना, बोलो। You can also find the vehicle something like this. You can also find the vehicle something like this. So there are different types of Excel configuration. अब मुझे हर कॉमर्शियल व्हीकल के एक्सेल के डेटा को रिकॉर्ड करना। वी हैव टू रिकॉर्ड द डेटा। तो कैसे कैसे एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है? तो फॉर एग्जांपल अपना एक्सेल ऐसे हो सकता है व्हीकल का, the Excel may be something like this, the Excel may be something like this, the Excel may be something like this. So these are the different options that are available in the case of road। ये आपके अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है। इस पे अगर इस तरीके का एक्सेल है तो कितना लोड होगा? तो यू विल फाइंड देयर विल बी 65 किलो न्यूटन। इस एक्सेल पे जो मैक्सिमम लीगल लोड होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 65 किलो न्यूटन।
ये आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अवर स्टैंडर्ड एक्सल, और स्टैंडर्ड एक्सल में हम लोगों ने बोला था लोड इज गोइंग टू बी 80 किलो न्यूटन एज पर द IRC 37/2012। दिस शुड बी द एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसा एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है 148 किलो न्यूटन, एंड इफ दिस इज द एक्सल ट्राइडेंट विल बी देयर 224 किलो न्यूटन। ये वैल्यू भी आपको IRC ने बताई है। All these values are also provided by the IRC, so you can refer the IRC for that also. देखो तो ये सिंगल एक्सल विद सिंगल व्हील लोड ऑन आइट साइड, these are the conditions. Single axle with single wheel on either side, single axle with dual wheel on either side, tandem axle with the dual wheel on either side, and tridem. So single, tandem, trident. All these points we have discussed. These are the standard load. These are the standard load 65, 80, 148, 224. 148, 224. यही डिस्कस किया हम लोगों ने। तो इन शॉर्ट वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द IRC। केवल IRC की गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने टेंडम बोला, दिस इज योर टेंडम एंड दिस इज योर ट्राइडम। दिस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन इज कंसीडर्ड एज द ट्राइडम। अब आपने सबसे पहला काम करा, कॉमर्शियल व्हीकल को आइडेंटिफाई करा। देन आपने हर कॉमर्शियल व्हीकल के एक्सल को देखा। नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू कैलकुलेट दिस एक्सल। जो डिफरेंट एक्सेल्स फॉर्मेट हैं उन सभी एक्सल, हाँ बेटा टेंडम मतलब 2 एक्सल, ट्राइडम मींस 3 एक्सल। मुझे सभी एक्सल कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड एक्सल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव ये। तो आई वांट टू कन्वर्ट ऑल दीज एक्सेल्स, डिफरेंट एक्सेल्स इनटू द स्टैंडर्ड एक्सेल फॉर्म। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फैक्टर डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं EALF। सर ये क्या होता है? इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग अ एक्सल लाइक दिस, अब मैं इसको इक्विवेलेंट चेंज करना चाह रहा हूं एक्सल लाइक दिस में, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट? तो फॉर दैट वी आर डिफाइनिंग द इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर, एंड दैट इज नथिंग एज EALF विल बी इक्वल टू L1 अपॉन LS टू द पावर 4। L1 अपॉन LS टू द पावर 4। तो यहां पर जो लोड था, लेट्स से दैट लोड इज L1। ये स्टैंडर्ड एक्सल है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड एक्सल, और यहां पर जो लोड है फॉर एग्जांपल दैट इज LS। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट एनी एक्सल इन इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड एक्सल। किसी भी एक्सल को, तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग the Excel configuration something like this. So for example, this load is L2 and we have a standard Excel that is something like this, that is LS. So for this I can write EALF will be equal to L2 upon LS to the power 4. This is the fourth power law. इसको बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। तो आपने सबसे पहले किसी भी डिफरेंट एक्सल को स्टैंडर्ड एक्सल 2/4 की पावर 4, क्या बोल रहा है ये 2/4 कहां चला गया? क्या कहना चाह रहा हूं सुरेश? बेटा L1 L2 है, ये L1 L2 है, L1 L2।
चलो वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑल्सो, डोंट वरी, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे टू प्रोवाइड टू गेट मोर क्लियरिटी। तो अभी मैंने केवल डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल्स को स्टैंडर्ड एक्सेल्स के फॉर्म में निकला है। नाउ वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वीडीएफ। वीडीएफ कैसे कैलकुलेट करें दैट वी विल सी, बट बिफोर दैट ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करो टू गेट क्लियरिटी। बोला इफ द स्टैंडर्ड एक्सेल जो है अपना वो 80 किलो न्यूटन का है। इफ द स्टैंडर्ड एक्सेल इज ऑफ हैविंग, हाँ ज्यादा विजुलाइज नहीं कर रहा बेटा, ज्यादा विजुलाइज नहीं करना। तो अगर बोल रहा है स्टैंडर्ड एक्सेल 80 किलो न्यूटन का है, बोला गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रिपीटिशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। दिस इज योर गेट 2 मार्क क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये गेट का 2 मार्क का क्वेश्चन है। आई गेस ईयर 2006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक्सेल दे रखे गए आपको अलग अलग किलो न्यूटन में, और उनके रिपीटिशन दे रखे गए। रिपीटिशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। तो एक्सेल लोड इज गिवन एज फॉर एग्जांपल 35 टू 45 किलो न्यूटन, 75 टू 85 किलो न्यूटन, और रिपीटिशंस आर गिवन एज 800 एंड 400। आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रिपीटिशन बताइए इन द टर्म्स ऑफ 80 किलो न्यूटन और स्टैंडर्ड एक्सेल। बेटा करेंगे, वीडीएफ की भी बात करेंगे। अभी तो मैं आपसे केवल ईएएलएफ की बात कर रहा हूं। तो पहले ईएएलएफ समझ लेते हैं, देन वी विल कैलकुलेट द वीडीएफ ऑल्सो। तो पहले ये सॉल्व करके बताओ। यस, अंकित इज सेइंग 450। सही है। एनी अदर आंसर? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके 35 से 45 के एक्सल लोड के रेंज के 800 रिपीटिशन हो रहे हैं, 75 से 85 वाले के 400 रिपीटिशन हो रहे हैं। आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड एक्सेल के रिपीटिशन इक्विवेलेंट बताने आपको। तो वी विल कैलकुलेट द ईएएलएफ। तो फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैन आई टेक द एवरेज वैल्यू? एक्सेल लोड की क्या हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं? तो दिस इज गोइंग टू बी 40 किलो न्यूटन, दिस इज गोइंग टू बी 80 किलो न्यूटन। यस और नो? नाउ वी कैन कैलकुलेट द ईएएलएफ। मैं दोनों के लिए ईएएलएफ निकाल सकता हूं। दैट विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 80 टू द पावर 4 एंड दिस शुड बी 80 अपॉन 80 टू द पावर 4। ये तो आने वाला 1 एंड दिस आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 1/16। यस और नो? तो स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म्स में रिपीटिशन भी चेंज हो जाएंगे ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 800 इंटू 1/16 प्लस 400 इंटू 1 that will be equal to I guess 450. That will be equal to 450. So yes, 450 will be the correct answer. 450 will be the correct answer. क्लियर है? चलो अब वीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो वीडीएफ क्या होता है? व्हीकल डैमेज फैक्टर। व्हीकल डैमेज फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया? वीडीएफ है क्या ये समझते हैं। तो वीडीएफ इज अ मल्टीप्लायर। वीडीएफ इज अ मल्टीप्लायर। वीडीएफ इज अ मल्टीप्लायर। सही है, आंसर सही है। क्या करना है? टू कन्वर्ट नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल
of different class and different configuration, different Excel configuration and loads into the number of repetition of standard Excel of magnitude 80 किलो न्यूटन। तो जो अलग अलग क्लास के व्हीकल थे, अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के व्हीकल थे, अलग अलग लोड के व्हीकल थे, with the help of VDF we can convert all that vehicles into the number of repetition of standard Excel। स्टैंडर्ड एक्सेल जिसका मैग्नीट्यूड 80 किलो न्यूटन है, उसी डेटा को आप इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडीएफ। तो वीडीएफ की यूनिट बता सकते हो, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वीडीएफ? यूनिट होने वाली वीडीएफ की, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल, तो हर कॉमर्शियल व्हीकल को किसी भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का हो, वो किसी भी एक्सेल लोड का हो, आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ वीडीएफ। अभी क्लियर है बेटा वीडीएफ क्या होता है? कोई डाउट पूछ रहा था? someone was asking what is VDF, what is the concept of VDF? So this is the concept of the VDF। तो सबसे पहले तो आपने अलग अलग एक्सेल्स को कन्वर्ट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। अब मैं सर नंबर ऑफ रिपीटिशन, मतलब देर हो गई बेटा, प्रीवियस लेक्चर फॉलो करो। बेटा सलोनी, दिस इज द क्रैश कोर्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वी कैन नॉट गो इन दैट मच डिटेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी टेक टाइम, ये कंज्यूम करेगा टाइम। क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रखा है, वी आर रिवाइजिंग द कंसेप्ट, यस और नो। तो बहुत माइनर डिटेल्स पे वी कैन नॉट गो, अदरवाइज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द क्रैश कोर्स एंड रेगुलर कोर्स, अदरवाइज फिर क्रैश कोर्स और रेगुलर कोर्स में डिफरेंस ही क्या रहेगा? तो आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, बट अगर आपको इससे ज्यादा के भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो यू कैन ऑल्सो रिफर द डिटेल्ड लेक्चर सीरीज दैट वाज टेकन बाय मी ओनली, जो मैंने सब्जेक्ट ले रखा दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग। तो वहां पर आप ये पूरे डिस्कशन को एक बार देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो। क्लियर है बेटा? चलो, तो एज पर आईआरसी वी कैन कैलकुलेट द वीडीएफ वी कैन कैलकुलेट। वीडीएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये बोला गया L1 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस L2 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस L3 अपॉन LS टू द पावर 4 एंड सो ऑन, डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। सर ये क्या है? अरे बेटा ये तो इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर था, दिस वाज द इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर। ये क्या बता रहा है? रिपीटिशंस बता रहा है। तो ओवरऑल ऊपर वाली वैल्यू क्या आने वाली? कहने से दीज आर द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, क्योंकि हर एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज कर दिया है इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल।
with the help of EALF. This is nothing but this is your EALF. Yes or no? Divide by number of commercial vehicle. Yes. Clear है बेटा? In this way we can calculate the VDF. और अगर इस तरीके से आप VDF कैलकुलेट कर सकते हैं तो नाउ आई कैन से फाइनल में लिख दे रहा हूं डिजाइन ट्रैफिक विल बी इक्वल टू कैपिटल N विल बी इक्वल टू 365 into A 1 plus R by 100 to the power N minus 1 into vehicle damage factor into lane distribution factor into factor of safety divide by R by 100. With the help of this formula, we can calculate the design traffic. So I hope we have discussed all these points. सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हम लोगों ने. तो अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. You will find various questions on this topic. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले. And yes, this is very important discussion. डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है, हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक फॉर ए फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन. तो डिजाइन ट्रैफिक कैसे निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. क्लियर है सभी को? चलो, तो आज हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट खत्म करेंगे. तो वी विल फिनिश द फ्लेक्सिबल पेमेंट. नेक्स्ट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? नाउ आई रिक्वायर्ड सीबीआर. अब मुझे सीबीआर ऑफ सॉइल चाहिए. तो ऑलरेडी मैंने मटेरियल में आपको सीबीआर ऑफ सॉइल बताया था. फिर से बता देता हूं जितना रिक्वायर्ड है. सॉइल सैंपल को लिया था, प्लंजर यूज किया था. वी हैव अप्लाइड द लोड एंड वी हैव मेजर्ड द पेनिट्रेशन. सॉइल पे आपने पेनिट्रेशन मेजर किया. कैसे डिफाइन किया गया था? सीबीआर 2.5 mm. सीबीआर 2.5 mm क्या था? लोड टेकन बाय soil for 2.5 mm penetration divide by load taken by standard aggregate for 2.5 mm penetration. ठीक है, multiply by 100. We will always report the CBR in percentage. थिकनेस निकालने के क्वेश्चन नहीं आते गेट में. पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये बता दो बस. तो 5 mm वी कैन राइट लोड टेकन बाय soil for 5 mm penetration divide by load taken by standard aggregate for 5 mm into 100. बेटा थिकनेस एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के क्वेश्चन नहीं आते. दिस इज नॉट इन आवर स्कोप. बट कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं सीबीआर को और डिजाइन ट्रैफिक को, फॉर दैट वी विल सी वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. गेट का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. इन आवर स्कोप द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज देयर. हमारे स्कोप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक, दिस इज इन आवर स्कोप. ठीक है, बट वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिलेट दिस एन वैल्यू एंड सीबीआर वैल्यू. उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसे लिखा था. वी कैन ऑल्सो, क्या फुल हो गया? तो वी कैन राइट सीबीआर 2.5 mm. सीबीआर 2.5 mm विल बी इक्वल टू, मैंने नोट किया था, P1 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लिए लोड था ये 1370 kg into 100 and similarly CBR to 5.0 mm that was
P2 divided by 2055 into 100. Yes or no? This we have discussed in the case of material. मटेरियल के केस में सीबीआर टेस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और जो भी इसमें मैक्सिमम आएगा दैट शुड बी द सीबीआर ऑफ सॉइल. वो सीबीआर ऑफ सॉइल था दैट वी हैव कवर्ड. हाँ, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 20 वेरी करती, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा. तो ग्रुप इंडेक्स मेथड भी एक होता है. यस, ग्रुप इंडेक्स मेथड भी एक मेथड होता है टू डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेमेंट. बर्मिस्टर्स मेथड, वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल, ट्राई एक्सियल मेथड्स. हम लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग द IRC 37 2012 मेथड. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्रैश कोर्स में मैं IRC 37 डिस्कस करने वाला हूं. वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल. तो इंपीरिकल मेथड, सेमी इंपीरिकल मेथड, analytical method, mechanistic approach, different approach are available to design the flexible payment. But as of now we are discussing the design of flexible payment by IRC 37 2012 method. ठीक है, तो इसके बाद अब मुझे पता चल गया, फाइनली आई नो द सीबीआर ऑफ सॉइल. अब मुझे सीबीआर ऑफ सॉइल भी पता चल गया है. नाउ फाइनली मैं कह सकता हूं based on design traffic capital N, based on design traffic capital N and CBR of soil, we can find the thickness of flexible payment, thickness of flexible payment by IRC 37 2012. तो कौन कौन सी लेयर थी? तो सॉइल सबग्रेड वर देयर, सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स. तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट. आप इनकी इंडिविजुअल थिकनेस T1, T2, T3, T4 और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द ओवरऑल थिकनेस. ओवरऑल थिकनेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल T, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ IRC 37 2012. क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है यहां तक का? सभी लोग कंफर्म करो. एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो, तो लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो आई हैव वन क्वेश्चन. कहां गया क्वेश्चन? This is your gate question. So I hope it's visible to all of you. बेटा कोशिश तो यही है, बाकी एग्जैक्टली पेपर मैंने नहीं सेट किया है. Everyone try to solve this question. This is gate 2 mark question.
Just try to understand the question, apply the concept, whatever concept we have discussed in the class. Based on that concept only, you will able to solve this question. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑल्सो. All the data is provided to you. $670 Okay, any other answer? C. ओके, तो मोस्टली 670 आंसर आ रहा है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व कर लेते हैं. क्या बोला गया? बोला यूजिंग IRC 37 1984 guidelines for the design of the flexible payment and the following data. Choose the total thickness of the payment. तो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल व्हेन द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज कंप्लीटेड. तो जब कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कंप्लीट हो चुका है, उस समय कितने कॉमर्शियल व्हीकल आ रहे हैं, दैट डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू. तो अगर मैं नोटेशंस के टर्म पे बात करूं तो आई थिंक दिस वैल्यू इज ए वैल्यू इज गिवन टू मी, दैट इज 2723 vehicle per day. Yes or no? Annual rate of growth of traffic is also given to me, that is R. R is given as 5%. Design life N is given as 10 years. This is given as 10 years. Vehicle damage factor is given as 2.4. And CBR of soil is given as 5%. CBR is given as 5%. ठीक है. फीवर नहीं है, कोल्ड कोई दिक्कत नहीं. तो आप इससे निकाल सकते हैं एन की वैल्यू. तो डिजाइन ट्रैफिक एन इज गोइंग टू बी 365 इंटू ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू VDF इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई आर बाई 100. यस और नो? पुट कर दो. Put all these values, you will get the n. So this is going to be 365 into 2723 into 1 plus r by 5 by 100 to the power 10 minus 1 into vehicle damage factor 2.1. Lane distribution factor is not given, we will assume 1. Factor of safety is not given, we will assume 1. Divide by 5 by 100. Tell me the value of n. यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं इन CSA. जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा इन MSA. टेल मी द फाइनल वैल्यू. टेल मी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिजाइन ट्रैफिक इन द टर्म्स ऑफ MSA. MSA में ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व कर लो. जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर. $30 MSA इज देयर. ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही 30 MSA. सॉरी. तो 30 MSA के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखता हूं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल अगर 30 MSA है, तो करस्पॉन्डिंग टू थिकनेस शुड बी इक्वल टू 670 mm. C will be the correct answer. C will be the correct answer for this question. With this approach, we can solve the thickness of the payment.
क्लियर है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन द गेट एग्जाम. दिस वाज आल्सो अ गेट 2 दिस वाज आल्सो अ गेट 2 मार्क क्वेश्चन. चलो, तो आप थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक दैट इज डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन वाले कंसेप्ट को पूरा कर लिया. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.